Hello students, a very good morning to all of you. This is Viva in front of you. Today I am here with a new topic, the chapter number 1, the tree huggers of class 4th. Student, I have discussed about punctuation marks in my previous video. So today I will take one more punctuation mark that is in front of you, that is called apostrophe. So what is the use of apostrophe and what is the meaning of apostrophe? Today I will tell you. Apostrophes are the punctuation mark. They are used in two ways. Apostrophe is also a punctuation mark. वहाँ पे हमें कुछ भी punctuation marks देना होता है जहाँ हम कुछ special show करने वाले होते हैं sentence में. So we use apostrophe marks. We can use it in two ways. What are the two ways? The first way is to show possession. हमें किसी चीज़ में अपना possession show करना होता है. Means possession means होता है क्लास वो चीज़ हमारी है. Means we have द राइट ऑन इट. मीन्स हमारा अधिकार है उस चीज़ पे. वो चीज़ सिर्फ हमारी हो सकती है या किसी की भी जिसका भी हम पोजेशन शो कर रहे हैं वो चीज़ उसकी है. सपोज आई से दैट विभाज बैग, विभाज मोबाइल मीन्स इट इज़ ओनली फॉर ऑफ माइन. मीन्स आई हैव द राइट ऑन दैट पर्टिकुलर बैग, पर्टिकुलर मोबाइल और वट एवर वी यूज्ड. सो इट द apostrophe marks is used to show possession. Got it? And to show contraction. Contraction means होता है class when we want to omitted. Here is a word omission means होता है when we want to omitted some letters, some words in between. अगर suppose हमारा word कुछ बड़ा हो रहा है और हमें उसे contract करना है, means उसे short form में लिखना है, तो we will omitted few letters in between. हम उसके बीच में से कुछ letters को miss करते हैं या फिर हम उसको omitted करते हैं. omitted means हटा देना, remove करते हैं. And in that condition we have to use the apostrophe mark. ऐसी कंडीशन में हमें क्या यूज़ करना पड़ता है? हमें वो ओमिशन की, हमने यहाँ से कुछ लेटर्स हटाए हैं, उन ओमिशंस को शो करने के लिए हमें apostrophe mark यूज़ करना पड़ता है. Got it? So what are the two ways? First we have to show possession on anything. We will use apostrophe marks. And the second type is when we have to mention the contraction of any words or letters. जब हमें किसी भी two words या letters को omitted करना होता है, वहाँ से हटाना होता है, तो we will use apostrophe marks to show contraction. Contraction means किसी भी चीज़ की short form. Got it? So now we will see the example. Read the sentence here. This village was under Maharaja's rule. Class, you can see very clearly that here is written this village was under the Maharaja's. यहाँ पे क्या यूज़ किया है क्लास? जब आपको किसी भी चीज़ का पोजेशन शो करना होता है, मीन्स वो चीज़ उसकी है. इसका हिंदी में जो मीनिंग आता है वो आता है का के की, मतलब किसी की है, इसकी है, उसकी है, या राजा की है, रानी की है, इस लाइक तरीके से. सो वी विल यूज़ द apostrophe mark and we have to mention s also. You can see in महाराजाज क्या लिखा हुआ है यहाँ पे क्लास? महाराजाज में उन्होंने मेंशन किया हुआ है महाराजा लिख के, फिर उन्होंने छोटा सा कॉमा दिया है, इसको बोलते हैं हम apostrophe. आफ्टर दैट टू शो पोजेशन दे हैव मेंशनड एस ऑल्सो. एस का मीनिंग होता है राजा की, का या की. ठीक है? तो दिस विलेज वॉज अंडर आ महाराजाज रूल. ये जो गांव है वो राजा के शासन में है. मीन्स इस पर किसका अधिकार है? सिर्फ किसका शासन है? महाराजा का. गॉट इट? तो यहाँ पर क्या शो हुआ? पोजेशन. पोजेशन मीन्स वो चीज़ राजा की है, वहाँ पर सिर्फ राजा ही काम कर सकता है. गॉट इट? देखिए उन्होंने क्या लिखा हुआ है वहाँ पे. टू शो पोजेशन वी ऐड एन apostrophe एंड एन एस. ठीक है? हमें जब किसी चीज़ का पोजेशन शो करना होता है तो हम वहाँ पर apostrophe मार्क लगाते हैं, मीन्स कॉमा. एंड वी हैव टू ऑल्सो मैंशन द एस विद इट. apostrophe के साथ में हमें एस भी मैंशन करना होता है जब व्हेन we are trying to mention a possession on anything or anyone. Got it? The second example. For example, the knight's castle means the castle belongs to the knight. जब हमने यहाँ पर लिखा है knight's castle, knight means होता है soldier, castle means महल. तो knight's castle means soldier का महल, means the castle
बिलोंग्स टू द नाइट मीन्स वो किसको बिलोंग करता है, पोजेशन मीन्स बिलोंग करना, यानी कि वो चीज़ हमारी होना या किसी की होना, जिसके साथ में हमने अपोस्ट्रोफी एस यूज़ किया मीन्स वो चीज़ उसको बिलोंग करती है, मतलब वो चीज़ उसकी है, ठीक है। तो नाइट्स कासल। सेकंड है द कासल्स टावर मीन्स टावर किस चीज़ का है, द टावर ऑफ कासल, हम किसकी बात कर रहे हैं, कासल मीन्स महल का जो टावर है वो उसका है, मीन्स जो टावर है वो किसको बिलोंग करता है, उस कासल का, मतलब उस कासल का वो टावर है। सो यहाँ पे पोजेशन शो हो गया। सो लेट अस सी द नेक्स्ट पॉइंट। लुक एट द अनदर सेंटेंस, स्टॉप प्लीज डोंट कट द ट्री, मैंने बोला स्टॉप प्लीज डोंट कट द ट्री, मैंने यहाँ पे डोंट वर्ड यूज़ किया है क्लास, यू कैन सी दैट आई हैव मेंशन हेयर द एपोस्ट्रॉफी लगाया, लेकिन यहाँ पर एस मेंशन नहीं किया। यहाँ पर क्या डिफरेंस था कि हमें वहाँ पर पोजीशन शो करने के लिए एपोस्ट्रॉफी मार्क भी देना था और उसके साथ में हमें एस भी मेंशन करना था, बट इन द सेकेंड टाइप वेयर वी हैव टू शो कंट्रैक्शन, जहाँ हमें कंट्रैक्शन शो करना है कॉन्ट्रैक्शन, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, सिर्फ एपोस्ट्रॉफी मार्क मीन्स कॉमा का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो डोंट कट द ट्री, हमने कहा स्टॉप रुको, प्लीज़ डोंट कट द ट्री, आप पेड़ को मत काटो, तो यहाँ पर देखेंगे हमने क्या लिखा है, हेयर द एपोस्ट्रॉफी इज़ यूज टू शो ओमिशन, यहाँ से हमने कुछ वर्ड्स को ओमिटेड किया है मीन्स हटाया है। इफ़ वी पुट टू वर्ड्स टुगेदर एंड मिस आउट सम लेटर्स, अगर हम किन्हीं भी दो वर्ड्स को एक साथ लिखते हैं एंड मिस आउट मीन्स हम वहाँ से कुछ मिस कर रहे हैं, सम लेटर्स कुछ लेटर्स हम बीच में से हटा रहे हैं, वी नीड टू ऐड द एपोस्ट्रॉफी, तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, जैसे यहाँ पर हमने देखो डू नॉट को हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, तो हमने क्या किया, डोंट, ठीक है। तो यहाँ से कौन सा लेटर मैंने मिस किया है, मैंने यहाँ पे से ओ मिस किया है, इसकी जगह पे मैंने क्या यूज़ किया है, एपोस्ट्रॉफी, ठीक है। तो जब हमें कुछ लेटर्स को रिमूव करना होता है तो हम एपोस्ट्रॉफी यूज़ करते हैं, टू वेयर द मिसिंग लेटर्स आर, वहाँ पे हम एपोस्ट्रॉफी यूज़ करते हैं जहाँ से वो लेटर हमारा मिसिंग है, कहाँ से मिसिंग क्या है हमारा, ओ, यहाँ से हमारा ओ मिसिंग है, इसलिए मैंने यहाँ पर यूज़ किया मीन। यू कैन सी दैट आई हैव रिटन हेयर डोंट में से क्या रिमूव किया हुआ है, ओ, ठीक है। तो यहाँ सेकंड टाइप क्या हुई, हमें किसी वर्ड किन्हीं टू लेटर वर्ड्स की अगर हमें कॉन्ट्रैक्शन प्रिपेयर करनी है तो वी हैव टू यूज़ एपोस्ट्रॉफी मार्क। हेयर फॉर एग्जाम्पल डू नॉट वुड चेंज टू डोंट द कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म, डू नॉट को हमने डू नॉट को हमने जब कॉन्ट्रैक्ट किया, मतलब हमने उसको शॉर्ट फॉर्म बनाई, तो हमने क्या बना दिया, बाय यूजिंग एपोस्ट्रॉफी मार्क वी चेंज इट इनटू डोंट। गॉट इट class? I hope you will get it clearly, so go forward। कॉन्ट्रैक्शन वर्ड विद नॉट, जिनमें नॉट लगाते हैं लेकिन हमें नॉट में से उनको कॉन्ट्रैक्टेड करना है, मीन्स हमें उन्हें शॉर्ट फॉर्म में बनाना है, तो हम क्या लिखेंगे, इज़ को हम क्या लिख सकते हैं, इज़ंट, वी विल यूज़ ओ हेयर, आरंट, वॉज नॉट को वॉजंट, वर नॉट को हम कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, वरंट, हैव नॉट को हैवंट। गॉट इट? तो हमने क्या किया है क्लास, आप देख रहे हो हमने नॉट में से जो ओ है उसको हमने रिमूव किया है और उसको सिर्फ एपोस्ट्रॉफी मार्क का यूज़ करके हमने उसको कॉन्ट्रैक्शन में चेंज कर दिया है। गॉट इट? तो हम इसको कंबाइंडली, जब हम पहले हम अलग अलग बोलते थे इसको इज़ नॉट, फिर हमने कंबाइंडली क्या बोला, इज़ंट, आर नॉट आरंट, वॉज नॉट वॉजंट, वर नॉट वरंट, हैव नॉट हैवंट। गॉट इट? So now the next chart like that, has not hasn't, had not hadn't, will not को हम क्या बोलते हैं क्लास, won't, ठीक है, won't। हमने यहाँ से क्या मिस किया है, यहाँ से हमने आई एल एल को मिस किया है और ओ को मिस किया और इसको न्यू फॉर्म दी, ये इसको स्पेशली हम याद करेंगे। विल नॉट में हमने कई चीज़ें रिमूव की हैं, यहाँ से डब्ल्यू के बाद हमने आई एल एल को मिस करके ओ यूज़ किया है और नॉट में से ओ को रिमूव करके हमने सिर्फ एपोस्ट्रॉफी मार्क यूज़ किया है। तो विल नॉट का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, वोंट। वुड नॉट वुडंट, डू नॉट डोंट, डज नॉट डजंट, डिड नॉट डिडंट, कैन नॉट कांट, could not couldn't, after that should not shouldn't, might not mightn't, must not mustn't, आई विल। क्लास यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हमारे पास विल है, नॉट नहीं लगा हुआ है, तो आई विल को हम क्या बोल सकते हैं, आयल। हमने क्या किया, डब्ल्यू को मिस कर दिया, ठीक है, डब्ल्यू को ओमिटेड कर दिया। ही विल को हील, हम इसको क्या पढ़ेंगे जल्दी में, हील मीन्स हमने यहाँ से भी डब्ल्यू को रिमूव किया। शी विल को शील,
ठीक है, तो ही I'll, hell and shall, तो इस W हम मिस करेंगे तो ये बन जाएंगे हमारे कॉन्ट्रैक्शन. So class, I hope you will get the topic very well. The use of apostrophe. The use of apostrophe is in two ways. At the place of possession, where we have to mention a possession, we will use apostrophe mark with S, and where we have to contracted any two words, we will use only apostrophe marks and omitted some letters from there. So I hope this topic you will get very clearly. If there is any problem, you can listen it again and again, and if after that you have find any problem, you can ask me. Thank you. Have a nice day.